Yes. Okay, good. Um, all right. So, so we will be starting today's lecture now, and we are going to start with the exception handling. Uh, so, in order to have exception handling working first, you have to import this java.io.exception class. Okay, so you have to import that one. It might work without importing that, but it's safer if you do this. Uh, yes. Okay. So what normally happens is that when we are working in Java, for example, there's an example over here. We have an array defined, and we want to access an index value of that array. But over here, we can see like we have the my number 10, the 11th value is being accessed. The index, we obviously write numbers, my numbers 10 for that, but that index value does not exist. So normally what happens is that you write something like this and it generates an error. So we can see that error over here. Let's, we have the exception manager, we run this. It will give us an error because that index does not exist. And so it gives me file IO exception manager has problem, file etc. Error index out of bounds exception. It's giving me index out of bounds exception. So what it's saying is that there's an exception that is being generated, and because of that exception, the program is crashing. Okay, it's not working. So having a program crash is not the best way of doing programming. The thing is that whenever you are working in the program should safely exit. Okay. Um, so whenever you are playing a game or doing something and something goes wrong, it just closes the program. Okay, so what can happen is that you might lose data in that way. So if you're working on, suppose you're making a document and it just crashes, so you are going to lose all the changes that you have been doing for a very long time, and that can be a problem. So what you can do is that whenever an exception is generated, you cache that exception. You say that, okay, an exception is generated and the program is ready for that. So if the exception is generated, so you safely exit. So what will happen? It will say saving progress and it will close the program. Or it will say that, okay, some exception has been generated. What do you want to do now? So it's going to ask you the next question, or it will just execute some other code and then close the program. Okay, so that might occur, and the best way is that you catch the exception and you safely exit the program so that it doesn't crash and just cause problems. So over here, what we are experiencing is that we are trying to access a memory location which does not exist. Okay, and that is why it says index not of bound error. So how we can do this is we write this a bit of code. Over here. So the question comes up like, okay, we can then we should put the entire we should put the entire program inside an exception handler. And the thing is, like, you cannot do that because the program can generate many exceptions. And then if you are just checking for one exception of the entire program, you will not know like where something went wrong. Okay, so what you will do is that the code that you think that it can cause an exception, you just cover that code with that exception handler. So how you do that is that you use a try and catch block, like something like if else. Okay, so it's very similar to that. It's try and catch block. You write it like this. So what it does is that you tell the computer to try doing this. If this does not work, an exception will be generated. Then that exception will be caught over here, and it will say system.out.print, and then something went wrong. सर ये समझ में नहीं आ रहा। Excuse me. सर मैं ये कह रहा हूँ ये सब मतलब ट्राई वाली चीज समझ नहीं आ रही। किसकी समझ में नहीं आई? ट्राई वाली चीज।
ट्राई वाली की ये है कि आप कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो वो या तो आगे बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो जो भी एक्सेप्शन जनरेट होगी तो वो उसको कैच करेगा, ठीक है ना। इट विल नॉट जस्ट इट विल नॉट प्रिंट एन एरर, इट विल, यू कैन कैच द एक्सेप्शन, you can print out what the exception was. All right, I think we can do this. We are having like over here E, so we can use E to print out the exception. And एक्सेप्शन है ना जी, वेरिएबल है ना, एक्सेप्शन जनरेटेड ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो जो एक्सेप्शन होती है वो कैच कर लेता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर it will print out something, it will print out something, it will execute some code, okay, and it will let your program exit normally, ठीक है। तो एक दफा इसे रन करके देखते हैं, तो I think it will be much more understandable after that. So it just said something went wrong because the exception was generated. It just says something went wrong and then it just closed. Okay, it closed the program. So in this way, in the previous way, what was happening? We were an error was being generated, right? And the program was crashing at that point. But over here, the program is what it is doing is it's catching the exception and it's executing a bit of code. So it just says like, okay, something has gone wrong. And now we should safely exit the program by writing this code. Okay, so what can happen is that you want to write you want to save a file. So if you're working on the file, so instead of crashing the program, it will save the file normally and it will exit the program. So you normally catch exceptions when so the computer throws an exception and you can catch the exception and do appropriately what you should do. So it can happen that the single line of code can generate multiple exceptions. So for each exception, it's going to do something else and then exit the code. So it's only for safely exiting the program. So for example, have you heard about the blue screen of death? Blue screen of death. It was very common in Windows 95 actually. So it used to like generate a blue screen and then you had no way of doing anything except for restarting the computer. So whatever you were doing, it was lost. Okay, so that's why the Windows 95 was not taken to be as a very good operating system. So these days, I think the Windows 10 it hardly ever crashes. If it does, so it hardly ever happens that way. And the Macintosh products, they are normally they charge more money for that because they are highly optimized and very well made products. Okay, so they rarely crash. So if you're working on your mobile phone and you open an app, it keeps on crashing. You're not going to use that application much often. Okay, you're not going to use it. You're just going to say, okay, so crashes a lot. I'm not going to use it. I'm going to use something alternative. Okay, so normally you think आपका whenever you catch an exception, the syntax is the same. Okay. You always it's sort of like catch is like a function, and you catch an exception, you pass an argument over here, the value comes into E, and then you can use that E value to find out like what the exception was, or just to print like what the exception was. Okay. So this is this small part of code. It just it allows you to safely exit the program. Okay. And now, why was this important? Because this is a longer topic. Because you catch exception, and then there's another part which says finally. I haven't written that one up because it's going to cause confusion. So for the time being, we're not going to do that. You can also throw your own exception if you want, okay? And then it will catch those exception and do something appropriately based on the exception. But we are just going for. So we are only going for. Just one type of exception right now. Okay, so we're just going to see like, okay, if something in the code is wrong, you can safely exit the program. So that is what we are going to do. Okay, what was that you were talking about? Somebody was saying something online. Yes, sir. I was asking that this would work for only one exception at a time, no? Like here, if this will work for only one exception. Yeah, for this exception, because we are going to try this piece of code, and if it fails, then you are going to write this. It is going to execute this code. So this is just to check if something can fail.
Okay. Okay. So why that was important? It was important. We were supposed to do that because the next code that we are going to talk about is all about reading and writing files. So reading and writing files, what can happen is that you want to try to read a file and the file does not exist. Okay. Normally what will happen? The program will crash. So suppose you are working in Microsoft Word, you say, okay, I want to open the file, I want to read a file. So, and you try to read the file does not exist. Okay, so it was in its memory. You always have the recently worked on files in Word. So what can happen? You had worked on a file in a certain document, in a certain folder. You move the file from that folder. So the Word does not know that. So if you try to open that file, it will say the file does not exist. Open a new file. Okay. So what will happen like if it doesn't say that? You try to read the file and Microsoft Word crashes. And you will be like really confused like what went wrong. Okay. So those kind of exceptions, they are normally occur when you are reading and writing a file. So over here we are going to talk about like how to read a file. And in order to do that, you can see like I have a try and catch block over here. So why try? Because I'm going to try to read the file. Okay, and if the file does not exist, so it normally crashes. In order to avoid that, I have to put this exception handler. Okay, so to understand that, I have to understand this. I had to tell you about like what an exception is. So how does this work? So again, what you do is first of all you write file. You create a data type of type file. So this file variable is of type file, and that is like an object. Okay, so it's an object that's going to hold the file that you're going to read. So you pass the path of the file from here. So it's a string value. So you pass the path, okay, and you pass it from here, and it opens that path over here. So when I say path, what do I mean? What I mean is that if you have to use something like this, suppose if some file is in the name of the file is my file, it's a text file, and it's in your C directory. So you will normally write it something like that, C sif colon, and so since it's backslash, so you have to use double backslash. We covered this last time. So you have to do double backslash to write that. Then C, the name of the file was my file dot txt. So you will have to write it like this. Okay, or you will call the function. You will pass this path in this variable. And instead of writing the file the path over here, you can easily use a variable to do that. So I will read file and put the path of the file over here, and it's going to read the whatever file I want to read. So this piece of code, it opens the file as a separate object. Okay, so the file has been opened. Then we use scanner. We have already used scanner for input data. Again, we are inputting the data, and now this time instead of writing scanner.in, I'm writing new scanner and I'm passing that file object. ठीक है, पिछली दफा हमने scanner.in लिखा था, उस पे वो यूजर इनपुट ले रहा था. इस वक्त हम यूजर इनपुट नहीं ले रहे हैं, फाइल से रीड करना चाह रहे हैं, तो हमने फाइल को एज इनपुट दे दिया. ओके, नाउ यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस फाइल. Then while my reader dot has next line. अब ये कोड, ये जो my reader है, ये scanner object है, इसके पास ये function given है. What it does is it checks if there is a line. ठीक है, फाइल empty भी हो सकती है, फाइल में 2 लाइनें हो सकती हैं, 3 लाइनें, 4 लाइनें, तो ये तब तक रीड करता रहेगा. अब while loop के अंदर है, तो ये while loop तब तक रीड करता रहेगा जब तक कि there is no next line. ये आखिरी लाइन पे आ गए, आखिरी लाइन खत्म की, आगे कोई लाइन नहीं है, तो it will stop at that point. So if there is a line, it will गैप होगा, तो अगर उसके बाद लाइन है, आपने एंटर दबा दिया ना, if there is an enter, वो आखिर में एंटर चेक करता है, मैं एंटर दबा दिया, obviously there is a new line. ठीक है, और फिर उस लाइन आपने एंटर नहीं दबाया, इसका मतलब है there is no line at the end. ठीक है, तो वो तब तक रीड करता है जब as long as you have those enter over there. So my reader dot has next line. So this is a function which returns true or false if there is a next line or not. So if my reader has next line, it will return true, and since it's true, this while loop will keep on going. So it will keep on reading till it gets new lines over and over again.
Okay. Then what we are doing over here, I'm declaring a string variable data, and it's reading the next line. Okay. So first of all, it checks if there's a next line. If there's a next line, it will read the next line. Whatever it is reading, it's going to store it in the data variable. ठीक है, तो लाइन में जो कुछ था उसने डेटा में स्टोर कर दिया, और then it's just printing the data. Okay, and it's doing this over and over again till the last line is reached. Once the license is reached, and my reader dot has next line, then there is no next line. Okay, since there is no next line, so this while loop will return false, while loop will break, and then it will close the scanner. Okay, so it will close the scanner, or it will stop over there. Now, if the file does not exist, so it will go to this exception, file not found exception. Okay, so it just says file not found exception. That exception will be generated, and then it's going to print that, and that is how you are going to manage the error. So in case the file does not exist, it's going to print that. So this is the read file, how this works. So now let's check that. So we are going to read file. Print stack जो है वो आपका जो वेरिएबल है e इसके अंदर है print stack. क्या आपको देखें print the throwable and it's return to the standard error statement. ठीक है, तो एक standard error statement वो throw कर देगा, ये एक standard error statement. ठीक है, आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखते हैं. ठीक है, तो ये एक एरर स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड एरर स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए कि वो इसके लिए इस्तेमाल होता है. अब इसमें हम आते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू ओपन सी फाइल जावा फाइल आयो और न्यू फाइल डॉट txt. ठीक है, हम ये खोलना चाह रहे हैं, एंड लेट्स सी इट्स इन जावा फाइल आयो. सो वी हैव जावा, वी हैव फाइल आयो और न्यू फाइल डॉट txt इसमें एग्जिस्ट करती है. और फाइल इन जावा माइट बी ट्रिकी बट इट इज फाइन एनफ. So this line is written, so there is one line, so it should print this line over here. Okay, so we run this. So this was being executed first, so that's why it said something went wrong. So let's remove this and we run this again. The files in Java might be tricky, but it is fun enough. Okay, so whatever was in that file, it's being read by this file reader. ठीक है, तो अब ये है कि अगर आप कोई फाइल्स बनाते हैं उस पर डेटा डाल के रखते हैं, तो नाउ यू कैन रीड दैट डेटा. पहले हम इनपुट करते थे सारा डेटा, इट टेक्स लॉन्गर. अब आपने इनपुट लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि फाइल के अंदर सारा इनपुट डाल दें, जितना भी इनपुट है, और कंप्यूटर से कहते हैं इस फाइल को रीड करो. Obviously, it will have to read the file, pick the input, put the input in the proper place. ये वो अभी हम करेंगे, तो शायद आपको समझ में आए. इसी तरह यहाँ पे कौन सी थी एक और है, I think there was data.txt as well. So there's data.txt as well. So if I want to read that, I just write data and I run this. So we have these names over there. The names were written over there, and we just get those names back. Okay, so those were given in the file. We can check that as well. So these were the names given. ठीक है, तो इसको हमने names को हम read किया और उसको हमने अपने डेटा में डिस्प्ले कर दिया. अभी हम सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं, मजीद काम भी करेंगे इसके साथ. अब इससे हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि आप सबके जो नाम है, आप लोगों ने IB में एडमिशन लिया, आप सबके नाम आ गए हमारे पास, सारे के सारे नाम जो एक फाइल में है हमने डाल दिए. अब उन नाम से जो भी काम करना है हम सिंपली उस फाइल को पास करेंगे, तो कंप्यूटर खुद ब खुद, जैसे ईमेल एड्रेस बनाना है तो आके नाम वहीं से पड़ेगा. ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रिंग में सारे नाम डाल रहे थे ना, इफ यू रिमेंबर, हम खुद से नाम डालते थे या यूजर से इनपुट लेते थे, उससे नाम डालते थे. अब वो करने की जरूरत नहीं है, आपने सारे जो है 200 300 500 जितने नाम है वो आपने फाइल में एक दफ़ा सेव हो गए, जनरेट की फाइल, सारे फाइल सेव हो गए. अब वो फर्स्ट फाइल लेके आपने कंप्यूटर को देनी है, इट विल ऑटोमेटिकली मेक एवरीथिंग. ठीक है, नाम की बेसिस पे ईमेल एड्रेस भी बना देगा, आपके प्रोफाइल्स भी बना देगा, सब कुछ कर देगा. ठीक है, हाँ, जो इनिशियल है कि इनिशियल आपने अप्लाई करना होता है, टेस्ट देना होता है, सिलेक्ट होना होता है, उसके बाद आपका नाम होता है, वो तो ऑब्वियसली इट इज़ अ मैनुअल प्रोसेस.
उसको भी काफी ज्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ मैनुअल प्रोसेस। उसके बाद एक फाइल बन के आएगी, तो वो जो फाइल है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आप ख्याल क्या करना है, ख्याल ये करना आप जितने भी सिस्टम हमने बनाया हुआ है उनके अंदर के नाम किस फॉर्मेट में आएगा वो उनको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप जापान जाते हैं तो जापान में सबसे पहले सर ने पहले लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो उमैरसा खान की जगह मेरा नाम होगा खान उमैरसा, ठीक। तो वो इस तरह हमेशा चलते हैं। अगर आप लोग एनिमेस देखते हैं तो उसमें तो आपको पता ही होगा क्या है, ठीक है, किस तरह चलता है। तो यस, तो ये तो था रीड फाइल, हाउ डू यू रीड फाइल, ठीक है। अब हम आते हैं राइट फाइल। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। राइट फाइल जो है वो भी इट्स स्लाइटली सिमिलर, लेकिन उसी तरह हमने ट्राई और कैश ब्लॉक रखा। कैश ब्लॉक में भी आपने आईओ एक्सेप्शन रखा है कि एन एरर अकर्ड एंड इट विल प्रिंट व्हाट द एरर वाज, ठीक है। तो प्रिंट स्टैक वो करता है। आपने ऑब्जेक्ट बनाया एंड इफ माय ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। तो अगर सर जी मैंने ये पूछना था, इसमें आप आईओ एक्सेप्शन क्या पूछना था, आईओ एक्सेप्शन क्या? इसमें आप आईओ लाइक आप इस वाले फंक्शन में आईओ एक्सेप्शन क्यों रख रहे हैं? मैं समझ में नहीं आई बात आपकी, कट रहे। टाइप कर दो। ओके सर, टाइप कर। Because it will return a boolean. IO exception इसलिए because we know that it's an input output exception, तभी IO exception लिखा है, ठीक है ना। आपके इनपुट और आउटपुट में आपको मसला हो सकता है, तो इसलिए IO exception लिखा है। बाद में आपको पता नहीं था एक्सेप्शन कौन सी है, तो इसमें आप सिंपली एक्सेप्शन लिख देते, ठीक है। सो ये डिफरेंस है इसके अंदर, अच्छा, बस एक और ठीक है। लिखा हुआ है ना आपके जो भी, सिंपल सी बात है कि आपको जिसके ऊपर आप होवर करेंगे ना खुद ही बता देगा, सिग्नल दैट एन IO exception of some sort has occurred। अब जब भी आप इनपुट या आउटपुट ले रहे हैं उसमें कोई एक्सेप्शन जनरेट करेगा तो वो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जनरेट करेगा, दैट मच वी नो, ठीक है। हमें वो नहीं करना, हम सिंपली एक्सेप्शन लिख दें, ठीक। इसमें आईओ एक्सेप्शन है इसलिए हम आईओ एक्सेप्शन करें। प्लीज एक्सप्लेन लाइन 57। अब इसको नहीं, क्या कह रहे हैं, prints the throwable and its backtrace to the standard error stream. This method prints a stack trace for this throwable object on the error output stream, that is the value of the field system.error। आपका जो सिस्टम जनरेट करे ना, कोई भी एरर जनरेट करता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि उसका कहीं के किसी अंदर जाके सिस्टम में कोई एरर आता है। अच्छा, वो कहता है अच्छा ये इस फंक्शन में एरर आया था, ये फंक्शन किसने कॉल किया था, ये फंक्शन इसने कॉल किया था। अच्छा, अब इस फंक्शन को किसने कॉल किया था, इसको इसने कॉल किया था, ठीक है। तो सारे फंक्शन जो है आपके स्टैक में पड़े हुए होते हैं, तो ये स्टैक में ना हर चीज, हर फंक्शन को पॉप करना शुरू कर देता है कि पहले ये फंक्शन था, फिर ये फंक्शन था, फिर ये फंक्शन था, ठीक है। तो फिर आगे पास जो आगे पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है फंक्शन की जहाँ पे ये एरर जनरेट होता है। तो ये पिंग स्टैक क्या करता है, उस एरर को, आपने एरर जनरेट हुआ, एक्सेप्शन हमने कैच की, तो ये आपको सिर्फ यही नहीं बताता कि कौन सी एक्सेप्शन थी, आपको साथ साथ में उसे प्रिंट स्टैक करने से उसके जो जो फंक्शंस कॉल हुए थे उन सबका एक पूरा वो भी देता है, लिस्ट भी देता है। ये आपको, आप देखें नॉर्मली एरर्स में भी आपको दे रहा होता है लिस्ट, ठीक है ना। तो ये वही लिस्ट जो है वो आपको इसमें भी देता है। तो अगर आप वो प्रिंट करना चाहते हैं कि वो क्या था एरर, एक तो पहले हमने लिखा सिस्टम समथिंग वेंट रॉन्ग, सब ये लिखा हुआ आ रहा था। अगर उसके साथ एक्स्ट्रा डिटेल लेना चाहते हैं कि वो सब ये ना कहे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, बट पूरा उसका वो क्या था कि पूरा जो फंक्शन जो कॉल हुए थे जिसकी वजह से एक्सेप्शन प्रोड्यूस हुई है वो कौन कौन से थे,
तो वो आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि समथिंग वेंट रॉन्ग से हमें ये तो पता चल गया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ये नहीं पता चला कि कहाँ पे। ठीक है, तो वो करने के लिए आप फिर इसको ई डॉट प्रिंट स्टैक कर देते हैं, और साथ साथ में वो एक जनरल एरर भी आपको प्रिंट करते हैं, एरर क्या। ओके सर। ओके, सो आपने किया माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल नेम। ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। आई हैव माई ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट न्यू फाइल। इसके बाद देखें क्या कहते हैं, इसका रिटर्न टाइप देखें बूलियन। ठीक है, तो ये चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इफ द फाइल एग्जिस्ट इट डजंट डू एनीथिंग, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, तो if the file exists it says file already exists and it does not cause an error। वो कहता है फाइल पहले से बनी हुई है, it doesn't matter। ठीक है, तो वो true and false बस रिटर्न करता है। otherwise it will say file created and a certain file has been created। तो क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये कुछ नहीं करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती फाइल को बना देगा, तो दोनों तरह से आपको एरर नहीं जनरेट होगा। ठीक, फिर आप फाइल राइटर जो है ये आप एक क्लास है, आप इसको यूज करते हैं, जैसा स्कैनर क्लास है। ये स्कैनर क्लास है उसकी इनपुट लेने के लिए, लेकिन फाइल में राइट करने के फाइल राइटर क्लास आप कॉल करते हैं। उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया माई राइटर, और न्यू फाइल राइटर आपने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसमें आपने फाइल नेम जो था, जो कि आप फाइल खोली थी, आपने उसका जो नाम था वो आपने पास कर दिया। अब हम इस फाइल में लिखेंगे ये कह रहे हैं, और ये फाइल कहाँ से, फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। ठीक है, तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती हुई बाबा उसको ही ओवरराइट कर देगा, अपेंड नहीं करेगा। अपेंड का मतलब आगे चीजें ऐड कर देगा, ये क्या करेगा, हमेशा ओवरराइट कर देगा। अपेंड के लिए मुख्तलिफ तरीका होता है, अपेंड अगर आप करना चाहते हैं, यही फाइल में बाबा लिखना शुरू कर। ठीक है, तो उसका अलग तरीका होता है। अभी हम सिंपली हम फाइल को अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट कर देंगे, एग्जिस्ट नहीं करती कि नई फाइल बना देंगे। तो अभी उसके अंदर ये लाइन लिखेगा। ठीक है, माई राइटर डॉट राइट ये चीज लिखता है, जिसको ज़्यादा चेंज कर देते हैं। we wrote something cool and my writer dot close, इधर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सिंपल ये आपका पार्ट है। और अब हम न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी पहले थी हमने रीड कर ली थी, उसकी जगह हम कुछ और कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं कूल फाइल कर देते हैं, कूल फाइल। तो जावा फाइल आई हो, मैं कूल फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक, अब जावा फाइल आयो में कूल फाइल के नाम की कोई फाइल नहीं। ठीक है, तो कूल फाइल डॉट टीएक्सटी हमने बनाया। अच्छा, ये डॉट टीएक्सटी ना जरूरी है कि हम किस टाइप की फाइल क्रिएट कर। ठीक है, तो ये ना भूलिएगा कभी भी नाम दे रहे हो। इसको रन करते हैं, फाइल क्रिएटेड कूल फाइल डॉट टीएक्सटी, ये हमने बता दिया। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी उसने क्रिएट कर दिया। और इसमें जाके हम इसको देखें तो कूल फाइल डॉट टीएक्सटी, इसमें वी इसी रोट फाइल को समथिंग। रीड भी कर सकते हैं अब हम, जो फाइल बनाई है। ऑब्वियसली हम रीड भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपने फाइल क्रिएट कर दी, तो वंस द फाइल हैज बीन क्रिएटेड यू कैन ऑलवेज रीड इट। सही है, तो आगे पास जो सारा का सारा डेटा है, ठीक है, वो आया। सही, अगर डेटा आपने रीड करना है तो आप रीड फाइल का फंक्शन कॉल कर लेंगे, आपने राइट फाइल करनी है तो आप राइट फाइल का फंक्शन कॉल कर लेंगे, वहाँ काम कर। ठीक है, जी सर। तो अब इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर आगे पास एक्सेल फाइल, ठीक है, तो वो बिल्कुल बेसिक है। आप एक्सेल फाइल में फिर भी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा लिखा होता है, आगे बस बेसिक जो क्या आती थी सीवीएस थी, आई थिंक इट्स सीवीएस फाइल जो आगे पास सबसे बेसिक सॉर्ट ऑफ वो एक्सेल फाइल होती है जो कि आप यूज़ करते हैं। तो आप वो फाइल्स जनरेट कर सकते हैं, फाइल्स आप रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा डेटा उस हिसाब से आपके पास आ जाए। एक मिनट इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। Let's do it that way. So we write file xlsx, हम एक्सेल की फाइल बनाते हैं। ठीक है, और हम इसके अंदर जो डेटा है हम चाहते हैं कि जो डेटा है वो डिफरेंट टैब्स के अंदर है।
ठीक है ना, आपको तो पहले ए बी सी में सिर्फ सेल्स के अंदर हम ये चाहते हैं। तो नॉर्मली इस तरह की जो फाइल्स होती है क्या होता है, अगर आप टैब डालेंगे ना तो हर टैब जो है एक नए सेल में चीज़ को डाल देगा, वरना बस एक ही टाइम में सब चीज़ें डाल देगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं कि फर्ज करें कि ए डॉट टैब, और इसमें हमने क्या लिख दिया, चलिए मैं 1 लिख देता हूँ 1। ठीक है, और फिर स्लैश एन, और फिर बी डॉट टैब, और हम इसमें 2 लिख दें। So if everything goes well, so it will write A in the first cell, 1 in the second cell, and then we'll go to next line, B in the first cell and 2 in the second cell. ठीक है, तो ये एक 2 लाइंस की ये लिखेगा if everything goes fine. तो ये करने के बाद अब हम इसको सेव किया, इसको हम राइट करते हैं। तो इससे ये फाइल क्रिएट कर दी, फाइल आईओ में जाते हैं, इसमें देखिए अभी आ गई है, अब इसमें आइकन भी चेंज हो गया, तो इसको जो एक्सेल है उसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक्सेल है फाइल। इसको ओपन करते हैं, इज नॉट वैलिड, ओके, इसने ओपन से इनकार कर दिया, क्लोज कर देता है। एक्सेल होता है ना, CSV करके देख लेते हैं, चलो आई थिंक CSV में प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आइडेंटिफाई तो कर लिया था लेकिन इसे चलाया नहीं। Google file dot CSV and this CSV भी इसने उठा लिया। ठीक है, हाँ सही नहीं हुआ, ओहो, इसको करना चाहिए था, टैब में आप करते हैं तो कर देता है। ओ गलत, नहीं होना चाहिए था, ए इसमें आया और 1 इसमें आया और बी इसमें आया 2 इसमें आया, मैं ये ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो वो अभी हुआ नहीं। लेट्स सी, इसको करना चाहिए था, हमेशा करता है। मे बी जस्ट मे बी स्लैश टी की जगह हम टैब डाल दें, टैब इस तरह। लेकिन बेसिकली टैब जो होता है स्लैश टी वो एक ही बात करता है, तो इससे करके देखते हैं, मे बी दिस माइट वर्क। लेट्स रन दिस। अब क्या फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, और चला के देखते हैं शायद अब सही हो जाए। CSV नहीं, भी सही नहीं हुआ। खैर नॉर्मली इस तरह कर लेता है काम, टैब्स के ऊपर ये कर लेता है काम, लेकिन अभी नहीं कर रहा एनीवे। लेकिन बात से इतनी सी है कि आप यू कैन मेक सेपरेट फाइल्स, ठीक है, और उनके दरमियान आप टैब से नॉर्मली रीड कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, आई एम स्टिल नॉट श्योर इट शुड वर्क। ओके, आई चेक इट कि क्या मैंने गलती की है। सुनन तो गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इफ यू राइट स्लैश टी इट बेसिकली मीन्स टैब, और उसको काम कर लेना चाहिए था यहाँ स्लैश टी स्लैश टी। उससे होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑटो में पहले ही हम स्लैश टी दे रहे हैं। करके देख लेते हैं, रन दिस अगेन। हम इसको पहले ऐसा करते हैं कि क्या ऐसा एरर दे दिया, व्हाई डिड इट गिव एरर, स्लैश टी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और इसको
कोई भी आगे फाइल होती है एक्सेल वगैरह, इसको आप नोटपैड वगैरह के अंदर भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप इसी के अंदर खोलें। ओपन विद नोटपैड, देखिए इधर टैब्स आ रहे हैं, हम जो टैब डाले थे वो आ रहे हैं, वो एक्सेल उठा नहीं रहा उससे। तो अब एक्सेल को भी चेक कर लेते हैं। एक्सेस को उठा नहीं रहा है फॉर सम रीजन, लेकिन टैब्स इसमें तो आ ही रहे हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि एक्सेल जो होता है वो या तो इस फाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा सही से प्रॉपर्ली। ओह, प्रोडक्टिवेशन फेल्ड। ओके, या तो इसको सही से उठा नहीं रहा, या फिर चूंकि मेरे पास ओरिजिनल एक्सेल नहीं डाला हुआ शायद इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन होता नहीं है नॉर्मली। लेकिन अगर हम इसको खोल के देखें, इसको ओपन विद नोटपैड, तो यहाँ पे टैब्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो एनीवे in line 48 get name function is already नहीं, माय ऑब्जेक्ट जो है वो ये तो ऑब्जेक्ट बनता है, इसको अब जो ऑब्जेक्ट बस बनाया हुआ है उसका नेम क्या होगा। ठीक है, तो वो नेम हम यहाँ से गेट नेम कर, आपने फाइल तो यहाँ पे पास की ना, अब जो आपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो आगे पास यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा फाइल क्रिएटेड, क्योंकि यू माइट बी मेकिंग सेपरेट ऑब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू सी लाइक व्हिच ऑब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उस ऑब्जेक्ट का फाइल नेम मालूम करने के लिए आप गेट नेम करते हैं। ठीक है, तो सारे पास का नाम आया। सही है, ओके। अब हम एक और कोड देखते हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, अब इस कोड हम क्या करना चाह रहे हैं जिसका नाम है फाइल्स मेकर। हम करना ये चाह रहे हैं कि फर्ज करें कि आगे पास ये डेटा गिवन है, ये लोगों के नाम गिवन है। हम चाहते ये है कि हो सकता है कि ये जो बैरी एलन है इसके आगे इसका डेटा सारा लिखा हुआ हो एक लाइन, या इसके नीचे लिखा हो एक लाइन में, इसी तरह हर एक का डेटा लिखा हो। तो आप चाहते ये है कि हर जिस आदमी का नाम लिखा उसका डेटा में एक अलग फाइल के अंदर सेव। ठीक है, तो उससे मुझे एक फाइल के अंदर खोल के नहीं देखना पड़ेगा, मुझे उसका डेटा देखने से उसकी फाइल खोलो, उसको उसका डेटा देख। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो टेक्स्ट फाइल होगी, वो एक सेपरेट फोल्डर में होगी। अच्छा, जावा में इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल इन सेपरेट फोल्डर, तो आपको पहले फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर कहना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर डाल दो। तो इस फाइल आईओ के अंदर हम एक फोल्डर बनाए थे, इसको मैं कहता हूँ फाइल्स। ठीक है, तो जो भी सेव करें फाइल्स के अंदर सेव करें। इसको क्लोज करते हैं, क्लोज विंडो। अच्छा, हमने करना क्या है कि हमारे पास डेटा डॉट टीएक्सटी है। ठीक, हम उसको सबसे पहले ओपन करेंगे। ओपन करेंगे, हम फिर पहली लाइन रीड करेंगे। जो पहली लाइन रीड करेंगे उसमें लिखा हुआ है बेरी एलन है, क्या है? शायद बेरी एलन नहीं लिखा हुआ, बेरी एलन लिखा हुआ। हमने करना यह फाइल, जब अगर हम सिर्फ बेरी एलन के नाम से फाइल को सेव करेंगे तो हो जाएगा बेरी स्पेस एलन डॉट टी एक्स टी बनेगा। हम वो स्पेस नहीं चाहते, बेरी एलन इकट्ठी फाइल का नाम। स्पेस होता है बाज़ कंप्यूटर पढ़ नहीं पाता है स्पेस की वजह से। ठीक है, नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो स्पेस आप अच्छा ही होता है कि आप निकाल दें स्पेस। हम स्पेस को निकालना चाहते हैं, उसके बाद हो जाएगा बेरी एलन डॉट टी एक्स टी फाइल बना दें, उस फाइल बना के क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ फाइल क्रिएट करें, उसका डेटा कुछ नहीं डालें। ठीक, तो हमने इसमें ट्राई किया कि एक स्ट्रिंग बनाया। हमने क्या
string data my reader dot next line, उसी तरह फाइल ओपन करें, उसकी पहली लाइन जो है वो पढ़ी, ठीक है। हैज नेक्स्ट लाइन, अगर लाइन होगी तो फिर वो रीड करेगा लाइन को। अब लिखा हुआ डेटा डॉट ट्रिम, डेटा डॉट ट्रिम आप इसलिए लिखते हैं कि ये स्ट्रिंग का फंक्शन है कि आपने लिखा कि नाम लिखा है, उससे आगे एक स्पेस है या उससे पहले एक स्पेस है, ठीक है। तो ये या 2-3 स्पेसेस है, अब वो स्पेसेस की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जरूरत है। तो ट्रिम क्या करते हैं, उन स्पेसेस को रिमूव कर दें, ठीक है। ये जाहिर फंक्शनैलिटी। तो ऐसे लीडिंग स्पेसेस शुरू में या आखिर में स्पेसेस हैं जो कि इनकी जरूरत नहीं है, बाद लोग टाइप कर रहे होते स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डेटा में बाजू गड़बड़ हो तो उसको रिमूव करने के लिए आप ट्रिम को इस्तेमाल करें। उसके बाद में क्या करूँ, मैं कर रहा हूँ डेटा डॉट रिप्लेस स्पेस विथ नो स्पेस। बेरी स्पेस एलन था, तो जहां जहां पे स्पेस आएगा उसकी जगह नो स्पेस डाल दो, तो वो स्पेस को खत्म कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं डाला हुआ, यहाँ पे मैंने स्पेस डाला तो ये होता, इसमें लिखा है नो स्पेस। तो जहां जहां पे स्पेस आएगा ये उस जगह पे स्पेस को गायब कर देगा। तो बेरी स्पेस एलन था तो वो बेरी एलन को मिला देगा, ठीक। स्ट्रिंग को से छोटा कर दिया। तो सर इसके बाद ट्रिम ये में क्या क्या फायदा करे, हुआ? एक्सक्यूज मी। मैं कह रहा था ट्रिम का क्या फायदा हुआ फिर जब हमने रिप्लेस ही करना था स्पेस को विद नो स्पेस। हाँ ये बात भी सही है, नहीं ट्रिम का आपका अभी तो इस केस में हमें, इस केस में जो है ट्रिम का फायदा कोई खास नहीं है, लेकिन कोई और जगह होती है कि कहाँ पे आपने ये काम नहीं करना। अभी तो है ना कि सरप्राइजिंगली है ये कि हम स्पेस को रिप्लेस कर, हो रिप्लेस सकता है कर उसमें आप स्पेस, उसमें आप ये रिप्लेस ना कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या ओके। करेगा, बीच में अगर 25 स्पेसेस हैं, 25 के 25 स्पेसेस को रिमूव कर देगा ये। ट्रिम क्या करता है, सिर्फ शुरू के स्पेसेस और आखिर के स्पेसेस को रिमूव करता है, बीच में सब चीज़ों को छोड़ देगा। तो ये फायदा दूंगा। ये करने के बाद आपने कहा कि डेटा जावा, जावा के अंदर फाइल्स, अच्छा जावा के अंदर फाइल्स था तो मैंने अभी किसमें फाइल आईओ के अंदर बना दिया था, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हम कर देंगे फाइल आईओ स्लैश स्लैश, उसके अंदर फाइल्स का फोल्डर है, उसमें जो अभी हमने नेम बनाया डॉट प्लस डॉट टी एक्स टी, तो बेरी एलन डॉट टी एक्स टी हम बनाना चाहते हैं और फाइल्स के अंदर हम डालना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, ट्राई करेगा कि इफ क्रिएट न्यू फाइल इफ दैट फाइल एग्जिस्ट, तो it will say कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ डज नॉट एग्जिस्ट it will say फाइल क्रिएटेड। तो अभी तक हमने जो कोड हमने पढ़ा था हमने उसी को इस्तेमाल कर, लेकिन नए तरीके से इस्तेमाल कर। तो फाइल मेकर क्या है, फाइल मेकर सबसे पहले एक फाइल को रीड करता है, उसकी पहली लाइन को रीड करता है, पहली लाइन में स्पेस है उसको निकाल देता है, उसके बाद उस लाइन को उसमें डॉट टीएक्सटी ऐड करके उस लाइन के नाम की फाइल को वो जनरेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जनरेट कर देगा और फिर माई रीडर डॉट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वाइल लूप के अंदर है माई रीडर, ठीक है। तो एक एक लाइन पढ़ता रहेगा, एक फाइल बनाता रहेगा, ठीक है। तो जितनी भी लाइनें लिखी होंगी उतनी फाइल्स ही बना देगा और उनको फाइल्स के फोल्डर के अंदर सेव कर देगा। और फिर फाइनली हम माई रीडर डॉट क्लोज कर, ठीक, इसको रन करते हैं। नहीं आप कह रहे फाइल क्रिएटेड फाइल क्रिएटेड फाइल क्रिएटेड, सबका बता रहा है जो जो फाइल क्रिएट हुई। आप फाइल्स के अंदर जाते हैं, आगे सारी फाइल्स क्रिएट हो, ठीक है। तो आप देखिए से काम कितना आसान हो जाता है कि आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा मैं अगर अलग अलग फाइल्स के अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो सारा हो जाएगा। मैं ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ, आपने ऑनलाइन टेस्ट किया, स्कोर किया, जो कुछ किया, ठक सारा डेटा इसके अंदर आई, ठीक। तो चीज़ें ऑटोमेट हो गई और ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इससे आपका जो वो है काम बहुत आसान हो जाता है। ऑब्वियसली हमने फाइल क्रिएट की थी, फाइल के अंदर कुछ है नहीं, खाली है, लेकिन अगर हम कुछ लिखना चाहें राइट का फंक्शन यूज करके हम उसके अंदर लिख सकते हैं। आप देखें बेरी स्पेस एलन नहीं है, सिर्फ बेरी एलन है मिला के लिखा हुआ है। ब्रूस डॉट ब्रूस बैनर नहीं है, ब्रूस स्पेस बैनर नहीं है, ब्रूस बैनर है, ठीक है, मिला मिला के लिखा हुआ है। ऑब्वियसली हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि बेरी एलन 01 हम इसमें ऐड कर दें, नाम बना दें उसका, ठीक, उस पर स्ट्रिंग मैनिपुलेट करके स्ट्रिंग को चेंज कर दें, ठीक है, उससे आप कोई चीज़ बना दें। तो इस तरह करके आप सही फाइल्स बना, ऑल यू नीड इज दिस फाइल,
सारा डेटा आपके पास है, उसको जनरेट कर गया। तो ये जो आगे डेटा साइंसेज है जो कि आगे आप पढ़ेंगे, उसकी बेसिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, हाउ टू रीड अ फाइल एंड मैनिपुलेट डेटा। तो उसमें पहले आपको डेटा का पैटर्न समझना पड़ता है, ठीक है, कि अगर डेटा का पैटर्न आ क्या रहा है, और फिर आप उस पैटर्न की बेसिस पे फिर आप डेटा को सेपरेट करते हैं, मुख्तलिफ टेबल्स में डालते हैं। फिर जब पूरे टेबल्स में डेटा डल जाता है तो उसके बाद फिर आप उसके फॉर्मूले लगाते हैं और उनको आप डेटा को पढ़ते हैं, और उससे आप एआई लगा के उस डेटा की बेसिस पे आप प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, वो मैं देख लेता हूँ। सर कोड एक दफा शो कर सकते हैं क्या सर? कोड एक दफा वापस शो कर दीजिएगा फाइल मेकर का। नहीं, कोड आपका सारा शेयर हुआ है। Does files writer overwrite a file or my writer does? File writer फंक्शन का नाम है ना, नहीं, फाइल्स मेकर फंक्शन का नाम है। फाइल राइटर की बात हो रही है, कहाँ गया फाइल राइटर? अच्छा, फाइल राइटर इसकी बात हो रही थी, ये राइट फाइल की बात हो रही थी। File writer, my writer. So does file writer overwrites a file or my writer writer? नहीं, file writer तो क्लास है ना, my writer तो उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फाइल राइटर क्लास को यूज करने के लिए my writer ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो my writer ऑब्जेक्ट बनेगा, सारा काम my writer ही करेगा, और उसकी टाइप क्लास है, ठीक है ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई भी आदमी गोली चला सकता है, तो कहेंगे वैसे नवे तो चला सकता है, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं आर्मी में कोई भी आदमी गोली चला सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, पहले उसको सोल्जर बनना पड़ेगा, सोल्जर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर वो कुछ करेगा, ठीक है। तो इसी तरह फाइल राइटर जो है वो यही है कि माई राइटर जो है फाइल राइटर बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट, तो फिर वो सारे काम करेगा। डॉट राइट डज आई जी, अब ये डज आई जी का मुझे नहीं पता क्या मतलब है। हाँ अच्छा, आई एस, एक कंप्यूटर बैठे हुए हैं ना, आई गेस लिखने कितना कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं। अच्छा, तो फाइल राइटर का फंक्शन भाई, इट्स अ ऑब्जेक्ट, इट राइट्स फाइल। कैन यू ओपन वन ऑफ दीज फाइल्स 0 KB? जी सर, कैन यू शो द कोड अगेन फॉर फाइल मेकर? सर, इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू क्लोज द फाइल एज वेल। जी, क्लोज फाइल करना जरूरी है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या करता है, कंप्यूटर खुद ही क्लोज कर देता है, ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात वो क्लोज नहीं करता और एरर देता है उसमें, ठीक है। तो इसलिए व्हेनेवर यू ओपन द फाइल, ट्राई टू क्लोज इट एज वेल। कई जगहों पे आप देखेंगे कि क्लोज नहीं किया होता है, उसकी दो रीजन होती है। एक रीज़न होती है कि वो उस फाइल के ऊपर मजीद थोड़ी देर के बाद कुछ और लिखना चाहते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि आप भूल गए होते हैं कि फाइल क्लोज भी कर दी थी। तो ऐसे में फिर कंप्यूटर जो है या तो खुद क्लोज कर देता है, ठीक है, या फिर उस फाइल को लिखता ही नहीं, ठीक है, कुछ लिखता ही नहीं है उसके ऊपर। जो सारा डेटा आप लिखना चाह रहे थे वो लिखेगा ही नहीं, ये तो अगर फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो वो इसलिए तो ये था फाइल मेकर। इधर हमारा आज का जो लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक। अब आपके पास जो फ्यूचर में जो आपके पास नॉर्मली एक्सरसाइजेस आएंगी वगैरह, जो क्विज़ेस या असाइनमेंट्स मिलेंगी, तो उसमें फाइल रीडिंग राइटिंग ही बहुत ज़्यादा चलेगी, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एरेज, फाइल रीडिंग राइटिंग, ये आगे काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाए, ये कर लें। जी, आज क्विज़ है, 10 बजे आपका क्विज़ स्टार्ट होगा। उसमें आपने करना ये है कि आप जो LMS पे जाएंगे तो वहाँ पे असाइनमेंट्स में आप जाएंगे, असाइनमेंट्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्विज़ 1 दिया हुआ होगा, और क्विज़ 1 का जो एक्सेस है आपको 10 बजे शुरू होगा, और मैं 10:35 तक आपके पास टाइम असाइनमेंट्स में होगा, क्योंकि टेस्ट क्विज़ेस हमारे पास एक्सेस आ नहीं रहा था। तो असाइनमेंट्स के अंदर तो मैं अभी LM1 से बात करूँगा, IT वालों से, मुझे टेस्ट क्विज़ेस में एक्सेस दें। तो अभी ये है, अभी जो क्विज़ है आपके पास एज एन असाइनमेंट आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे कि क्या क्विज़ है, सही है। और उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यू हैव टू डू दैट विद इन हाफ एन आवर, और फिर आप उनको फाइल होगी वो आप अपलोड कर देंगे, ठीक है।
अब टाइम का ख्याल रखिएगा, ये ना कीजिएगा कि वो हमारा मैं तो करने वाला, बस मैं करने ही वाला था कि वो सिस्टम बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप करने वाले थे तो आपको 1 मिनट पहले से अपलोड कर दें, ठीक है। ड्यूरेशन जो दी जाती है वो इससे दी जाती है कि भाई इससे आगे आगे बस आप नहीं तजावज़ कर सकते इससे, ठीक है। तो उससे पहले आप जो भी हो कितना भी हो करके या तो अपने लिए टाइमर लगा लें। आप कहेंगे हमारे पास टाइमर कैसे आएगा, तो वो ये है कि आप गूगल में जाके लिख दें कि 5 मिनट टाइमर या 30 मिनट टाइमर, वो आप सिंपली ये कर सकते हैं। आपके पास क्वेस्ट जो है वो 30 मिनट्स का है, तो आप गूगल में जाए लिखें कि 29 मिनट टाइमर, ये आ गया, ये कर दें। ऐसा स्टार्ट, अब ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। फिर ये बंद कर दे तो ठीक है, आप 28 मिनट्स कर लें, ठीक है। तो ताकि आप बस 1 मिनट हो काम करने का, तो ये कर, जब ये खत्म हो टी 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 बोलेगा, ठीक है। फिर ये ना हो कि आप कह देंगे ओ टाइम मसला हो गया वगैरह वगैरह। फिर जहाँ टी टी बोला वहाँ पे आप कहें भाई चलो भाई काम खत्म, सेव करो और अपलोड करो। सेव करना ना भूलिए फाइल को, ठीक है। सेव करो, अपलोड कर दिया, आप इसका टाइमर चला सकते हैं उस पर। तो सर आज क्विज है, फिर लैब बिजनेस की हो जाएगी। वी आर गोइंग टू मिस लैब, वी आर नॉट गोइंग टू मिस लैब, लैब में हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। आप इधर कर लें तो जल्दी फारिग हो जाएंगे, घर में नहीं करना पड़ेगा, घर पे करते हैं, ठीक है वैसे क्या सर क्विज के सर वो जो आपने पासिंग एवरेज वाला जो करवाई थी, तो उसमें सर आपने बोला था ना कि आप जब जैसे पास टूटी के अंदर डाटा एलिमेंट आप किसी और फंक्शन की यूज करना तो विदाउट ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट साथ में डिक्लेयर करना है, एक नाम लिखना होता है ना उस एरे का। जी जी, तो सर वो उसमें बोल रहा है कि वो डाटा कैन नॉट बी रिजॉल्व। वो आपको, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कोड, वो हो सकता है कि आपने मल्टी डायमेंशन एरे सिंगल डायमेंशन एरे में पास कर रहे हैं। सिंगल सिंगल में करें तो फिर आपने फिर अगर ये कहते हैं नॉट रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, तो उसमें नॉर्मली होता है वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया होता आपने करना। नहीं आप जो एरे जहाँ पे देखें आप कहते हैं कैन नॉट रिजॉल्व के द नेम के वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल का मतलब ये है कि आपने वो वेरिएबल बनाया ही नहीं हुआ। अब इट कैन बी इन द न्यू फंक्शन, इट कैन बी इन द ओल्ड फंक्शन, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे कॉल करें, जहाँ पे आप कॉल करें उस वेरिएबल का आपने आपने वेरिएबल नहीं बनाया हो, ठीक है। तो आप बनाना भूल गए होंगे, आप एक्सपेक्ट करोगे आपने बनाया, आपने बनाया नहीं होगा, इस वजह से आपका ठीक है, डाटा एरे कहीं और से लेकर आओ, ठीक है। ये जो पासिंग होगी क्यूब के अंदर डाटा की वो मेन फंक्शन में डिक्लेयर होगी। डिपेंड करता है, अगर मेन फंक्शन के अंदर करें तो फिर मेन फंक्शन के नाम ने एक फंक्शन कॉल किया है, वो फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न वैल्यू आप कहीं और पास करना चाह रहे हो अलग बात है। आपने मेन फंक्शन के अंदर एरे बनाया, उस एरे को आप पास करना चाहिए अलग बात है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो उस पर है कि सिंपल सी बात यह है कि जिस फंक्शन के अंदर आपने कोई चीज़ क्रिएट की है उसमें अगर आपके पास एरे है तो वही फंक्शन दूसरे में पास करेगा, ठीक है। ये दैट इज द रूल। या फिर वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, वो फंक्शन आपको एक डेटा रिटर्न करेगा, फिर वो उस डेटा को कहीं स्टोर करेगा और फिर उस डेटा को फिर कहीं और पास करेगा, तो फिर वो ये करेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली प्रोसेस ये होता है, इस तरह वो वैल्यूज को पास कर, ठीक है। एक से वैल्यू ली दूसरे को पास कर दी, या वैल्यू खुद क्रिएट की उसको पास कर दी, ठीक है। क्योंकि आपने करना है इस तरह का काम है कि कोई मैनेजरियल पोजीशन पे आता है तो ये तो लोग बड़ा तंग होते हैं उससे, अगर वो हर चीज़ में घुस के ना हर चीज़ ये तुम इससे इस तरह करो, तुम इसको इस तरह करो, तुम इसको इस तरह करो, ठीक है ना। तो वो कहते हैं हमें अपना काम करने दो, ये हर चीज़ में घुस रहा है, ठीक है। तो जो 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 तो मेन फंक्शन का मकसद ये है कि वो हर चीज़ में ना घुसे, वो काम डेलीगेट कर दे कि तुम ये काम करो, मुझे इससे फिक्र नहीं है, ठीक है। तो वो वाला चक्कर है कि वो एक गुड बॉस आप कहते हैं, गुड बॉस जो आप ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा काम करेंगे तो आप डेलीगेट कर देगा। तो यहाँ ऑब्वियसली आप अच्छा काम नहीं कर रहे तो बाज़ार सुपरवाइज करते हैं कि अच्छा काम कर लो,
सुपरवाइज जिनके बाद भी अगर आप अच्छा काम नहीं करते आपको टेक आउट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो सुपरवाइज इसलिए करता है कि एक दफ़ा आप सेट हो जाए उसके बाद आप हाथ हटा देते हैं, कहता है अच्छा ट्रेन हो गया मैं आगे चलूँ, ठीक है। नॉर्मली जो बॉस बैठा होता है वो ये चाहता नहीं होता किसी की ट्रेनिंग करना पड़े, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करो तो पहले से चीज़ आती है। तो जब वो ना हो फिर वो कहता है कि यार इसको मैं या तो खुद ट्रेन करूँ या मैं इसको निकाल दूँ, मैं नया बंदा ले आऊँ, तो क्या मेरे लिए फायदेमंद है। ये नया बंदा लाना ही मुसीबत है ना, उसको लाना है, ट्रेन करना है, ओरिएंट करना है, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चलता है। अच्छा 10 बजे शुरू होगा क्विज जी, 10 बजे शुरू होगा सर। एमसीक्यूज होंगे क्विज में? नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है। X2 X3 क्या लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। आपकी अटेंडेंस सही होगी तो मुझे मसला नहीं है, आप लोग अटेंडेंस सही नहीं रख रहे थे इसलिए मैं नहीं कर रहा था अपलोड। एक ही था प्राइवेट, मैंने सही कर दिया था उसे। मैं उसको अनलिस्टेड रखता हूँ मैं नॉर्मली। अनलिस्टेड का मतलब ये है कि जब तक मैं आगे पास उसका लिंक नहीं होगा ना तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बाज़ लोगों के नाम आते हैं वगैरह। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों के नाम ना पब्लिक हो, इसलिए, ठीक है ना। तो कभी किसी का नाम लेकर कोई बात कर दूं, कुछ और कर दूं, मैं ये नहीं चाहता पब्लिक हो तो आपकी क्लास के अंदर ही रहे। लेकिन अगर आपने खुद से इसका लिंक किसी और को पास कर दिया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अनलिस्टेड मैं इसलिए रखता हूँ, वरना तो पब्लिक करता हूँ मैं, तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है? मैं चाहता ही हूँ कि वो हो ना, इसलिए मैं अनलिस्टेड रखता हूँ, ठीक है। LMS पर एज असाइनमेंट आएगा जी, एज असाइनमेंट। व्हाट आर द टॉपिक्स फॉर द क्विज? जो कुछ आपने पढ़ा, ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ा उसमें कुछ भी आ सकता है। तो अगर कोई आपका कोई भी आगे फ्यूचर में मुझसे पूछेगा कि टॉपिक क्या है, मैं जो कुछ पढ़ा हुआ जी, कोई से पता चल जाएंगे। क्विज जो है असल में क्विज जो है आपको मुफद्दल ने बनाया, मुफद्दल जो आपके टीए हैं उन्होंने बनाया, ठीक है। तो वही चेक करेंगे, तो वो क्विज उनका डिपार्टमेंट है जी।